Friends, today's event is a representative and symbolic gesture before the second most powerful body to protect the Constitution of India and to ensure democracy, that is Supreme Court of India. A bunch of lawyers which are standing in front of the Supreme Court right now beseech the Honorable Supreme Court on behalf of people of India who have at this very moment highest of expectations from the Honorable Apex Court that they will do justice, a justice which is not being performed by another constitutional body, that is Election Commission of India. That is the expectation of the people of the India, not only people of India but the entire democratic populace of the world. All the democratic countries of the world are today looking with expectation towards this great institution which has protected Constitution of India. We are only exhorting and beseeching the Honorable Apex Court that please do not delay. People of India, people of the world, democratic people of the world expect a decision from Supreme Court which has been pronounced by other constitutional courts of Europe and America that EVM machines are a big fraud. No free and fair election can be held by the use of any machine. So therefore, all the democratic countries, all the large democratic countries, majority of the democratic countries are using only paper ballots to hold elections. That is the expectation of the people of democratic world. That is the expectation of people of India. You being the highest court of the land, India, you being an open court, you have a duty today to live up to the expectation of not only people of India but the entire democratic world, to set an example that Supreme Court of India will ensure free and fair elections. This is the reason we are here today, a bunch of lawyers under the banner of EVM Hatao Sanyukt Morcha, but we are just a face. Behind us are standing people of India. They are forcing us, they are pushing us, they are making us stand here in front of Supreme Court. दोस्तों, हम आज जो लॉयर्स मुट्ठी भर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, ये ऐसी जगह है जो देश की सबसे बड़ी दूसरी भारत की जनता के बाद इंस्टीट्यूशन है जो संविधान को बचाने की और डेमोक्रेसी को बचाने की संस्था है सबसे बड़ी। हम उसके सामने खड़े हैं और भारत की जनता नहीं, पूरी दुनिया की जो लोकतांत्रिक जनता है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाली जनता है, उसके बिहाफ पर बहुत ही आदरणीय तरीके से गुहार लगाने खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने के बहुत जल्द से जल्द ऐसा फैसला आप लोगों से पूरी दुनिया के लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा फैसला दूसरे संवैधानिक अदालतों ने दूसरे देशों में किया है कि ईवीएम से कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता, स्वतंत्र इलेक्शन ईवीएम से हो ही नहीं सकता, स्वतंत्र इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से हो सकता है। ये उम्मीद लेके पूरे देश की जनता और पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक जनता आज टकटकी बांधकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ देख रही है। तो कृपया आप एक ओपन कोर्ट हैं, कृपया आप एक ऐसी संवैधानिक दुनिया की सबसे बड़ी संवैधानिक कंट्री के, डेमोक्रेटिक कंट्री के, एक सबसे पुरानी सभ्यता वाली कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की रक्षक बॉडी के रूप में आप खड़े हो और पूरी दुनिया आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रही है। मेहरबानी करके इस एक ऐतिहासिक मोमेंट पे जल्द से जल्द ईवीएम हटाने के लिए और पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए जो भी कानूनी अड़चन है, हालांकि कोई अड़चन है ही नहीं अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा, उसको दूर करके पेपर बैलेट से यानी कि मतपत्र से चुनाव कराने की कृपा करें। ये उम्मीद पूरी दुनिया इस वक्त भारत की सुप्रीम कोर्ट से कर रही है। बहुत बहुत एक मैं बात और कहना चाहता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कंपेनियन जजेस से, चूँकि आपने एक व्यवस्था दी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गठन में
3 लोगों की जो समिति होगी उसमें एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे और एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन केंद्र की सरकार ने संसद के द्वारा एक बिल लाकर उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई व्यवस्था को बदल दिया और अब इलेक्शन कमीशन का गठन करने वाली 3 सदस्य कमेटी के अंदर जो 3 सदस्य होंगे उसमें देश के प्रधानमंत्री होंगे और एक कानून मंत्री होंगे। यानी 2 लोग तो केंद्र की सरकार के हो गए और एक विपक्ष के नेता होंगे। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन का गठन केंद्र की सरकार जिस अधिकारी को चाहेगी उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स बनाएगी। तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर्स उनके इशारे पे काम नहीं करेंगे। ये पॉसिबिलिटी है कि वो संदेह के दायरे में हैं, उन पे भरोसा करना मुश्किल है। इसलिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अदर कंपनी जजेस से निवेदन करता हूं कि आपने जो रूलिंग दी थी उसको आप अपहेल्ड कराइए और इस संसद के द्वारा पारित इस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराइए। धन्यवाद। एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। साथियों, आपको ध्यान होगा हमने एक मिस कॉल का नंबर दिया था। जो मिस कॉल का नंबर था हमारा 9667222062 यानी 966 77 220 62। ये मिस कॉल का नंबर जब हमने शुरू में लिया था तो कॉल आ रही थी लगातार, लेकिन सॉफ्टवेयर उसमें नहीं था, जिसकी वजह से वो 4-5 दिन कॉल लगातार हर पलाई आप सबने देखा। पर परसों शाम को जब हमने उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह डलवा के पूरी तरह से उसको ठीक कर दिया, आपको जानकर हैरानी होगी कि कितनी कॉल तब से लेकर अब तक आई है। जब से लेकर अब तक 2,30,000 कॉल, 2,30,000 कॉल, यानी अभी उसको पूरे 48 घंटे नहीं हुए, तकरीबन 45 घंटे में 44-45 घंटे में 2,30,000 कॉल्स उस पर आ चुकी हैं और ये डाटा लगातार बढ़ेगा। मुझे विश्वास है, जैसे मैंने कहा कि ये करोड़ों में पार जाएगा और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने बाकायदे दिखाएंगे, डाटा लेकर दिखाएंगे कि इस देश के इतने लोग नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जिन साथियों ने पहले फोन किए थे, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पर अब वो दोबारा फोन करें ताकि उनका कॉल भी इस डाटा में आ जाए, रिकॉर्ड हो जाए। इतना ही मेरा निवेदन है और इस कॉल का नंबर लगातार अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को, समाज के लोगों को, पड़ोसियों को जहां तक भी पहुंचा सकते हैं इस नंबर को पहुंचाएं और सबसे कहें कि लगातार इस पर कॉल करें। ईवीएम को हटाने के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत जनता की हमारे पास में है, तो इसको अधिक से अधिक लोग कॉल करें इस नंबर पर। थैंक यू। एक बार सारों का ले लो ना, कितने लोग हैं।